Good afternoon. Good afternoon, Ruchi. We'll wait for 1 minute more. Let everyone join, and then we'll start the class. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Start the class. Switch on your cameras. Only 3 people from BBM 445 join. Sunny, Ruchi, and one more. His roll number is, I guess, 21. Why are others not joining? Next, today we'll मैम अभी क्लास खत्म हुआ है इसलिए आप ज्वाइन में लेट हो गए. in this class थोड़ा सा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बारे में और डिटेल में तुम लोगों को बताएंगे. सी आई एम नॉट गोइंग टू टू मच ऑफ थेरीज. बहुत ज्यादा थेरी की तुम लोगों को जरूरत नहीं है क्योंकि ये वर्कशॉप है. सो आई वांट यू टू get acquainted with all the practical things which are associated with recruitment and selection. Okay, so the more you understand how and why recruitment is done in a certain way, in a certain process, you'll get more and more practical knowledge related to it. Okay, देखिए रिक्रूटमेंट का मतलब क्या समझाए थे लास्ट क्लास में? Ma'am, numbers they need. फिर से बोलो. Ma'am, numbers of workers they need. जो मतलब workers का जो need मतलब जरूरत होता है उसे मतलब recruitment. No, not number of workers that they need. The number of applicants that an organization keeps on adding. Okay, the number of applicants यानी जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पोस्ट से, इस प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहते हैं. एंड द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज कि सिलेक्शन में क्या होता है कि यू स्टार्ट एलिमिनेटिंग पीपल. सिलेक्शन का प्रोसेस ही एलिमिनेशन से स्टार्ट होता है. जैसे उस दिन हम बताए कि आपका फॉर्म का स्क्रीनिंग जब होना शुरू होता है, बीपीएससी का कोई रिक्रूटमेंट आया, रिक्रूटमेंट निकाला गया, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट आ गया. जितने लोगों का जिस डोमेन से मन किया उन्होंने फॉर्म भर दिया. यहां तक का प्रोसेस है रिक्रूटमेंट. लेकिन अगर सिलेक्शन की बात करो तो सिलेक्शन का मतलब है कि the first step of selection here will be screening of your application. तुम्हारे एप्लीकेशन का जब स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तब तुम बोलोगे कि सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है. ठीक है? Now write down few things. थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट्स लिखो इस चैप्टर का. Write down at least the definition and types. ये सब तुमको पता होना चाहिए ताकि बाद में you can relate it with other things. Write down. रिक्रूटमेंट के बारे में लिखो. Give the heading recruitment. अभी सिर्फ रिक्रूटमेंट की बात हो रही है. Write down. It is the process of searching for and obtaining the applicants for job.
and obtaining the applicants for job. It is the process of attracting as many applicants as possible. Repeat, ma'am. It is the process of attracting. It is the process of attracting as many applicants as possible Attracting के बाद मैम. फिर से बोलो सनी. Attracting के बाद मैम. Attracting as many applicants, जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, as many applicants as possible from the eligible job seekers, from the eligible job seekers from various resources. From various Ma'am, resources. बोलो रुचि. मैम एक बार रिपीट कीजिए. It is the process of searching for or obtaining the applicants for job. Okay? It is the process of attracting as many applicants as possible from the eligible job seekers from various sources. Eligible job seekers from various sources. Okay? Now, understand the difference. Recruitment is a positive process and selection is a, बोलो, negative process. ठीक है? Recruitment को हम positive process मानते हैं और selection को recruitment को हम positive process मानते हैं और selection को negative process मानते हैं. क्यों? क्योंकि recruitment में you go on adding the number of applicants from whichever source is possible. Okay? From whichever source is possible. लेकिन selection में क्या होता है? Selection में we eliminate the applicants. Selection process में हम applicants को eliminate करते हैं. इसीलिए selection को क्या बोला जाता है? Negative process. इसीलिए उसको negative process बोलते हैं. देखिए, recruitment is termed as positive process. Recruitment is termed as positive process because the HR goes on adding the number of applicants and prepare the database for current and future opening of the organization. The success of any organization depends upon its human resources, which is also termed as its intellectual capital. Intellectual capital. Intellect, human resource के पास दिमाग होता है ना, इसीलिए उसको intellectual capital बोला जाता है. Intellectual capital.
अच्छा ये बताओ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? हाउ डू यू थिंक इज रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन? क्या समझ पाते हो? मैम इसमें एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दिया जाता है। हाँ, प्रोसेस तो वही है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे इंपॉर्टेंट है? मैम वैकेंसी निकालना। हाँ ठीक है, वैकेंसी निकालना, लेकिन क्यों निकालता है वैकेंसी? डायरेक्टली किसी को रख क्यों नहीं लेते बिना एग्जाम लिए हुए? मैम इसलिए कि उसके पास एक्सपीरियंस है उस या नहीं है मैम। एम्प्लॉय के पास नॉलेज और स्किल होना चाहिए नॉलेज देखा जाता है मैम, एक्सपीरियंस देखा जाता है मैम। और एक्सपीरियंस मैम। ठीक है। बाकी कोई? देखो नैन्सी, set your camera properly, okay? See, Yes, ma'am. see, मान लो कि तुम बीबीएम की बात कर लेते हैं, ठीक है? हम बोलेंगे कि एक पेपर रीड आउट करना है, एक जर्नल है, इसके लिए राइटिंग स्किल्स की जरूरत है। तो हम बीबीएम के ग्रुप में, बीबीएम के क्लास में जाके स्टूडेंट से देखते हैं कि किसी की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है कि नहीं है। नाउ अगर स्टूडेंट्स बिल्कुल ही लो लेवल के हैं, यानी किसी की राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो हम तो सिर्फ उसी में से बेस्ट सेलेक्ट करेंगे। Yes, ma'am. यस मैम। तो जो खराब में से जो कम खराब होगा, इसका मतलब यही हुआ ना कि जो खराब में से कम खराब है हम उसको सेलेक्ट कर लें, यही होगा। Yes, ma'am. यस मैम, यस Yes, ma'am. लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर तुम्हारे बीबीएम में सबकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, सब इतना लिख लेते हो कि यू कैन बी कंसिडर्ड टू फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ गुड राइटर्स, तो क्या होगा? मैम उसमें से बेस्ट को चुनेंगे, से ज्यादा बेस्ट को चुनेंगे। तो Yes, ये जो ma'am. बेस्ट होगा, ये पहले वाले बेस्ट से बेटर होगा कि कम बेटर होगा? पहले ज्यादा वाला बेटर होगा। बेस्ट। पहले वाला बेटर होगा। नो मैं पहले से ज्यादा हाँ, होगा मैम, तो जो better अभी होगा। पहले से ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि पहले तो बहुत मीडियोकर्स थे, फाइन, और अभी तो बहुत अच्छे लोगों में से, स्किल्ड लोगों में से सिलेक्शन हुआ। इसीलिए रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जब तक अच्छे लोग अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक बेस्ट लोग ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट होके आएंगे कैसे? नो मैम। व्हाट? बोलो रुचि। मैम मैं एक बार Fine. रिपीट की। हाँ, आई गॉट इट कि तुमको समझ में नहीं आया था क्वेश्चन। ये बताओ, जब तक रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, ये एग्जाम्पल से हम तुमको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर रिक्रूटमेंट में क्यों वेरियस सोर्सेज से इनविटेशन, ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाता है कि जो लोग एलिजिबल लोग हैं वो सारे लोग अप्लाई कीजिए। जब तक अच्छे लोग अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक बेहतरीन लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा? राइट? ठीक है, सो दैट इज व्हाई Yes, ma'am. screen the best person out of the good people. रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। अब समझ में आई ये बात? यस मैम। जो भी जैसे रिक्रूटमेंट ओपन कर दिया तो सारे लोग अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करने में जो अलग अलग फील्ड से एलिजिबल लोग हैं, किसी को ज्यादा एक्सपीरियंस है, किसी को कम एक्सपीरियंस है, और सिलेक्शन का एक एक प्रोसेस करते 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 लास्ट में जो बेस्ट है उसमें से उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। इट्स जस्ट सिंपल। ओके, राइट डाउन। the best employee for the organization, the best employee for the organization will be selected only when
only when the good employees apply for it. मैम ओनली के बाद मैम Only when, जब, only when good employees apply for it. This way, इस तरीके से, this way, recruitment is the base and foundation. This way, recruitment is the base and foundation for good selection. For good selection. Next heading though, importance of recruitment. Importance of recruitment. Point number 1. Bullet points में लिखो. Helps in determining present and future requirement. प्लीज मैम रिपीट It helps in determining present and future requirements. Present and future requirements of the organization. In alignment with human resource planning. In alignment with human resource planning. Second, आप लिख लीजिए, हम ये point explain कर देते हैं. Second, creates a pool of job candidate in minimum cost. Creates a pool of job candidates in minimum cost. It helps in increasing the success rate of applicants It helps in increasing the success rate of the applicants by eliminating the underqualified and overqualified. By eliminating the overqualified and underqualified. Next, it helps to prepare. It helps to prepare and identify the. It helps to prepare and identify the current employee. For greater responsibilities. Operator responsibilities. अब एक एक करके आप पॉइंट्स रीड कीजिए. आई विल एक्सप्लेन कि आपने कॉपी में क्या लिखा है. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, रुचि? मैम helps in determine present and future representation on its organization in alignment with human resource planning. ठीक है. सी, मान लो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने लिंक्डइन पे अपना ये प्रोफाइल डाला है. लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल डाला या monster.com, naukri.com, किसी पे भी जो जॉब पोर्टल है उस पे ये डाला कि एक असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी खाली है. ठीक है. तो असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी खाली होने का मतलब है कि बहुत सारे लोग उसके लिए, उस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं.
Yes. ठीक है, यस मैम। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे होंगे वो इंटरेस्टेड होंगे, या कोई Yes, फ्रेश बंदा होगा वो इंटरेस्टेड होगा, जिसमें कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस लेवल के लोग हो सकते हैं, कुछ कम एक्सपीरियंस के लोग हो सकते हैं, कुछ डायरेक्ट मैनेजरियल पोजीशन के हो सकते हैं, कुछ नीचे से ऊपर गए हुए हो सकते हैं। सो देयर आर चांसेस कि अगर एलिजिबिलिटी है तो एलिजिबिलिटी होने के बाद भी डाइवर्स बैकग्राउंड के जो एम्प्लॉयज हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब लिंक्डइन पे ये बात हुई कि इस डेट पे यू कम फॉर इंटरव्यू, तो इंटरव्यू लेने के लिए आए, वो बाकी सारे एम्प्लॉयज आए इंटरव्यू लेने के लिए। 12 तारीख को मान लो डेट अनाउंस हुआ, 20 कैंडिडेट आए इंटरव्यू लेने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, सीट एक ही खाली है। तो तुमको क्या लगता है कि उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को उस वक्त चूज कर लिया जाता है? मैम। राइट, Yes. बेस्ट कैंडिडेट को उस वक्त चूज कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो बाकी की 19 सीवीज है उसको फेंका नहीं जाता है। Okay, the rest CVs are kept in a file, that is a database which is maintained with the organization. वो database organization maintain करती है so that कि अगर फ्यूचर में उसको कोई रिक्वायरमेंट हो, जो भी पहला पॉइंट है, फ्यूचर में अगर कोई रिक्वायरमेंट है, मान लो वही असिस्टेंट मैनेजर तीन महीने काम किया और काम करके उसने छोड़ दिया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या there is a chance of further any vacancy coming up, असिस्टेंट मैनेजर किसी ने रिजाइन कर दिया है, किसी दूसरे असिस्टेंट मैनेजर ने, और वो नोटिस पीरियड में है, यानी कि 3 महीने के बाद एक और पोस्ट खाली होगा असिस्टेंट मैनेजर का। मैम। तो अंडर दैट कंडीशन इसीलिए तुमने ये लिखा है कि करंट ओपनिंग की तो रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है ये रिक्रूटमेंट, उसके साथ साथ फ्यूचर ओपनिंग के लिए भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करता है। डन? Yes, ma'am. Next line. What is the next point? Yes, ma'am. Ma'am, creates a tool of job candidate at minimum cost. It helps in increasing the success of rate of the applicant by eliminating the over and underqualified. ठीक है, देखो Yes, ma'am. देखो लिंक्डइन पे जब ऐड किया गया, जब प्रोफाइल डाला गया लिंक्डइन पे, जब इस चीज का ऐड किया गया कि असिस्टेंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट की जरूरत है, तो दिस डज नॉट कम फॉर फ्री, ये फ्री नहीं होता है, उसको जो भी एम्प्लॉयर होता है उसको चार्ज देना पड़ता है अपने एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश करने के लिए, और फॉर दैट मैटर बाकी प्रोसेसेस को भी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उसको चार्ज देना पड़ता है। प्लस रिक्रूटमेंट वाले दिन, जिस दिन इंटरव्यू देने आए उस दिन भी आपको पूरा सीन सिनेरियो में उस इंटरव्यू को कंडक्ट कराने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। बाकी भी इंटरव्यू कोई एक ही आदमी नहीं लेता है, जनरली क्या होता है कि प्रोडक्शन वगैरह में लेना है तो बाकी डिपार्टमेंट के भी जो जीएम होते हैं वो लोग रहते हैं, एचआर का जीएम रहता है तो वो रहता है, तो एक दिन के लिए तुम्हारा सारा रिसोर्सेज एंगेज हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो तुमको ये लगता है कि जैसे एक पोस्ट के लिए अगर उसने एक दिन इंटरव्यू कंडक्ट किया, तो अगर वो बाकी की 19 सारी सीवीज हटा दे, तो फिर उसको अगर तुरंत 3 महीने या 6 महीने के बाद रिक्वायरमेंट है, so is it wise to go through that process again? Is it wise? Give me an answer. मैम मैम नहीं लगाया, क्यों लगाया उसमें? क्यों लगाएगा? क्योंकि that will be a cost borne by the organization. उससे अच्छा है कि वो एक pool create करे। रुचि, just check out whether you have written tool or pool. That is pool, P-O-O-L. pool माने ढेर सारा CVs या applications जमा करके रखना। PSUs वगैरह का जो एग्जाम होता है वो उसका प्रोसेस कम से कम 6-7 महीना चलता है, ठीक है। वो रिक्रूटमेंट निकालेगा, फिर 2 महीने तक का टाइम देता है, लोग फॉर्म भरते हैं, उसके बाद फॉर्म जब भर दिया जाता है तो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर एडमिट कार्ड इशू होता है, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, देन द पीपल आर स्क्रीन्ड एंड देन मेंस का एग्जाम होता है, उसके बाद स्क्रीन होता है, फिर इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या पहले भी हो सकता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तब ज्वाइनिंग होती है। और मान लो ज्वाइनिंग करते वक्त लोग
छोड़ दें अगर ज्वाइनिंग करने के समय में, तो will the organization take pain to go through the entire process over and again? No ना, this is not wise. नो मैम, ये तो पेंडिंग में हो जाएगा मैम। ये पैसे की भी बात है, this will cost them heavily. ओके, इसीलिए Yes. वो लोग पूल में रखते हैं, जैसे कि आप समझिए कि जैसे वेटिंग लिस्ट एक काइंड ऑफ पूल है, होता है यस ना, मैम, वेटिंग लिस्ट में चला जाता है मैम। कि अगर ऊपर से खाली होगा तो नीचे वाले को जगह मिलेगी। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट ओवर क्वालिफाइड और अंडर क्वालिफाइड को हटा के जो चांसेस है एप्लीकेंट्स का उसको बढ़ाता है। ये तो बहुत अंडरस्टैंडेबल है। मान लो कि एक ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आई, ठीक है, एक ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आई है और उसमें पीएचडी कैंडिडेट अप्लाई किया, मास्टर्स डिग्री वाले अप्लाई किए, एमबीए वाले अप्लाई किए। क्या चांसेस है कि एक ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल वाला अप्लाई किया, तुमको क्या लगता है कि क्या चांसेस है कि वो ग्रेजुएट लेवल वाला छोड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन पहले कि पीएचडी या एमबीए वाला छोड़ेगा? मैम कोई भी छोड़ सकता है मैम। अदर्स? पीएचडी वाला मैम, पीएचडी जो यस, और एमबीए वाला। yes. Why? So why are others not participating? Simply logged into the class and you're sitting idle. Even your camera is not on. Wait, let me see. बाकी किसी का कैमरा भी ऑन नहीं है, कोई पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे। ऐसे सत्यनारायण की कथा की तरह सुनिएगा तो वर्कशॉप काम नहीं देगा, ये यूनिवर्सिटी में आएगा नहीं। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए एड ऑन कोर्सेज लगाया जाता है ताकि आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक रहे। यस, कोई भी कोर्स नहीं पढ़ाया जाता है, जो इंडस्ट्री का डिमांड होता है वर्कशॉप्स उन्हीं चीजों का कराया जाता है। ओके, शी सेड कि मैम पीएचडी वाला जल्दी छोड़ेगा। आंसर इज राइट, लेकिन क्यों छोड़ेगा? कोई ये जस्टिफाई कर सकता है? वेट, राजू कुमार, यू टेल मी। मैम क्योंकि ग्रेजुएशन का ऊपर से उस पे आया है ना, तो वही ना आवेदन करेगा। बोलो फिर, ठीक से कॉन्फिडेंटली बोलो, गलत होगा तो हम सही करेंगे उसको, और क्या होगा। मैम वैकेंसी तो ग्रेजुएशन को आया है ना, तो वही ना करेंगे। नहीं, मान लो कि अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी है। मैम उसको काम करने में सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं होगा। सतीश बोलो, सतीश बोल रहे हो? यस मैम। ठीक है, बाकी लोग बताइए। नूतन एंड अनीता, आप दोनों बताइए। दैट इज नूतन, गिव मी एन आंसर। यू आर गेटिंग दिस एंटायर क्लास और नॉट? मैम मैं बोलूं क्या? मैम बोले मैम। वेट, आई विल गिव यू चांस। मैम जो पीएचडी मतलब कि वो सबसे लास्ट हो जाता है और उसके पास नॉलेज का प्रोसेस ग्रेजुएशन से ज्यादा होता है। हाँ, तो इसी कारण वो ज्यादा अप्रूवल कर पाएंगे। तो ज्यादा वो पहले मतलब कि कर पाएगा। अनीता? मैम जिसके पास ज्यादा नॉलेज होता है वही इम्प्रूवमेंट करता है। वही इम्प्रूवमेंट, यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर 10th पास करके एक प्यून का वैकेंसी आता है, ठीक है, जिसका कि मिनिमम क्राइटेरिया है कि 10th पास होना चाहिए, और उसको अगर एक बीए वाला भर देता है, तो तुम्हारे हिसाब से 10th क्लास जो पास्ड आदमी है उससे ज्यादा बीए वाला उसको निभाएगा जॉब को। देयर आर मोर चांसेस ऑफ पीपल हु आर ग्रेजुएट टू स्टे इन अ 10th पास प्यून जॉब इवन इफ दे अप्लाई, राइट? नो मैम, उसको काम करने का मतलब सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए मैम, तब जाके काम करेगा ना। उतना हायर एजुकेशन मिलने के बाद मतलब इतना छोटा काम। ठीक है, रुचि, सतीश, आई गॉट योर आंसर। रुचि और कौशल, तुम दोनों बताओ क्या बोलना है। मैम पीएचडी वाला जो है उसके एक्सपीरियंस भी है, डिग्री भी है,
तो तुम्हारे तो हिसाब वो से मतलब वो नहीं छोड़ेगा, मैम वो छोड़ देगा, छोड़ वही देगा। छोड़ेगा ना ठीक है, कौशल योर आंसर। मैम वो इसलिए वो उसको हाई क्वालिफाई है मैम, उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है। वो चाहे तो वो छोड़कर आगे भी ग्रोथ के लिए वो कोई और कंपनी ज्वाइन कर सकता है। इसी के कारण मैम। ठीक है, एंड नैंसी तुम बताओ। मैम अगर वैकेंसी मैम ग्रेजुएट लेवल पे निकला तो उन लोगों के लिए सही होगा। किसके लिए? मैम जो ग्रेजुएट है या फिर उसके थोड़े से नीचे होंगे। ग्रेजुएट के लिए तब तो ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल ना, उससे ऊपर एलिजिबल हो सकते हैं, उससे नीचे कैसे एलिजिबल होंगे? मैम अगर एलिजिबल तो नहीं है ऊपर वाले, अगर उनको अगर जॉब का चाहिए अगर तो फिर ठीक है चलेगा। सी आई थिंक थोड़ा थोड़ा तुम लोग समझ रहे हो। ये सतीश ने जो आंसर दिया दैट वाज दी, बाकी लोगों ने भी आंसर सही दिया, जैसे कौशल, रुचि एंड राजू आल्सो ट्राई टू सम एक्सटेंट, लेकिन सतीश ने जो आंसर दिया दैट वाज ट्रू कि वर्क सैटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर तुम बीबीएम पास करके अगर तुमको 10th लेवल का जॉब दे दिया जाएगा और पैसा भी उतना दिया जाएगा तो भी you will not be willing to stay and continue in that job. Okay, this is because that work is lower in stature than your qualification. तो तुमको satisfaction नहीं होगा। तो अगर वो ज्वाइन कर भी ले तो ज्यादा चांसेस है कि वो जॉब छोड़ करके जा सकता है। ओके, क्योंकि he will always seek better opportunities. वो हमेशा उससे बेहतर की तलाश में रहेगा ना? यस मैम। यस मैम। दिस इज द रीजन कि ये लिखा हुआ है कि इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ एप्लीकेंट्स बाय एलिमिनेटिंग द अंडर क्वालिफाइड एंड ओवर क्वालिफाइड। अंडर क्वालिफाइड भी, अब कोई एमबीए करके मशीन चलाने के लिए जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अगर किसी तरह से तुम उसका एप्लीकेशन दे भी लोगे तो वो छोड़ देगा तुरंत। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। और लास्ट क्या है? मैम लास्ट है आपको, इट हेल्प्स टू प्रिपेयर ऑन आइडेंटिफाई द करंट एम्प्लॉय ऑपरेटर रिस्पांसिबिलिटी। ओके, इट हेल्प्स टू प्रिपेयर एन एम्प्लॉय फॉर हायर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। अगर तुम जिस पोजीशन के लिए रिक्रूट हुए हो उस पोजीशन के बाद करियर प्लानिंग का पार्ट होता है कि आपको हायर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज के लिए तैयार किया जाए। तो एक बार आप रिक्रूट हो जाते हैं देन यू लुक फॉरवर्ड टू इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। ओके, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके, अब देखो ये समझो, रिक्रूटमेंट दो तरीके से होता है। रिक्रूटमेंट का दो टाइप है। एक, और ये हम लोग उस दिन भी डिस्कस किए थे, कैसा रिक्रूटमेंट होता है। एक एसएससी का एग्जाम्पल लो, चलो। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकता है, और दूसरा एसएससी में ग्रुप सी का एक एग्जाम होता है जो टैक्स असिस्टेंट का होता है, राइट? वो टैक्स असिस्टेंट का ग्रुप प्रमोट हो करके, मतलब उसको लगभग 6-7 साल या 10 साल भी लग सकता है, इंटरनल एग्जाम्स क्वालिफाई करके, एंड देन दैट पर्सन बिकम्स इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ओके, जो बाहर से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होकर के आया उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, और जो अंदर से रिक्रूट होकर के आया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से उसको हम बोलेंगे इंटरनल। यस मैम। इंटरनल। जैसे उस दिन आईबीपीएस क्लर्क और पीओ का एग्जाम्पल बताए थे। क्लर्क का एग्जाम देते हैं लोग, ठीक है, क्लर्क का एग्जाम देते हैं लोग, 3 साल के बाद जाएब और खाएब ये सब चीज का एग्जाम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उस एग्जाम को क्वालिफाई करके वो पीओ बनते हैं। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट? इंटरनल मैम। इंटरनल रिक्रूटमेंट। और जो सीधा एग्जाम होता है आईबीपीएस जो कंडक्ट करता है पीओ का, उसको वो किस तरीके का रिक्रूटमेंट हुआ? एक्सटर्नल मैम। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हुआ। ये तो तुम लोग एक्सटर्नल इंटरनल समझ गए। अब ये बताओ इंटरनल रिक्रूट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का क्या क्या टाइप होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हुआ वो हुआ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ठीक है। यस। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हुआ वो हुआ
इंटरनल मैम। इंटरनल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का और टाइप्स बताइए आप लोग, सोच के बताइए, आप जानते हैं ये चीज। मैम पहले रिक्रूटमेंट होगा, फिर सिलेक्शन होगा, और नहीं, उसके आई एम बाद नॉट आस्किंग दैट। आप बताइए कि किस किस तरीके से एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है, क्या क्या टाइप्स है। जैसे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बाहर से, हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। आई गिव यू वन एग्जांपल। मैम उसके लिए सबसे पहला एलिजिबल होना चाहिए। नो, आई एम नॉट आस्किंग दैट सतीश, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आई एम टेलिंग यू कि व्हाट आर द टाइप्स, क्या क्या एग्जाम्पल है इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। जैसे हम तुमको एक एग्जाम्पल देके बताते हैं। एक्सटर्नल यानी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, राइट? ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जो रिक्रूटमेंट हुआ वो हुआ एक्सटर्नल। जैसे कि कंसल्टेंसी, यस मैम। सुने हो? यस मैम। यस मैम। वेट, सतीश, सतीश यस मैम। यस मैम। सुने हो? कंसल्टेंसी से रिक्रूटमेंट होता है, वहां पे आप सीवी देते हैं जा करके। नो मैम, सुने नहीं है। सुने नहीं हो? तुम अगर बड़े शहरों में जाओगे, यहाँ से बैंगलोर, मुंबई ये सब ढूंढने के लिए जाओगे, अगर पटना में थोड़ा ये चलन कम है क्योंकि इट्स अ स्मॉल सिटी, लेकिन तुम बड़े शहरों में जब जाओगे तो तुम वहाँ जॉब कंसल्टेंसीज है, यानी वो कंसल्टेंसीज ऑर्गेनाइजेशन के कांटेक्ट में रहती है। ऑर्गेनाइजेशन अपना नीड्स और डिमांड्स वैसी कंसल्टेंसी को बताता है, और फिर आप जब अपना सीवी देते हैं और आपके लायक अगर कोई मैच हो तो जो कंसल्टेंसी होती है वो तुमको उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए रेफर करती है। अंडरस्टूड? जब तुम्हारा Yes, सिलेक्शन कंसल्टेंसी के थ्रू होता है तो जो कंसल्टेंसी है उसको कुछ पैसा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिलता है, जो उसका अपना शेयर होगा। ओके, और बताइए। yes ma'am. एक्सटर्नल Campus रिक्रूट, वेरी गुड। हु सेड दिस? आंचल। कैंपस प्लेसमेंट, बीइंग अ स्टूडेंट तो तुम लोग ये पॉइंट बोल ही नहीं रहे थे। कैंपस प्लेसमेंट वो सबसे अच्छा एग्जांपल है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। बाहर से रिक्रूटमेंट होता है ना। और एग्जांपल बताओ। वॉक इन इंटरव्यू सुने हो? यस मैम। वॉक इन इंटरव्यू एक्सटर्नल का टाइप है कि इंटरनल का? एक्सटर्नल। naukri.com, यस मैम। यस मैम। naukri.com कौन सा टाइप है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल है मैम। एक्सटर्नल। एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। कैंपस रिक्रूटमेंट, मैम एक्सटर्नल। इंटरनल। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट समझते हो? यस मैम, जो डायरेक्ट हायर कर देते हैं कंपनी में। कैसे होता है रिक्रूटमेंट? देखो, जनरली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होता है ना वो वर्कर्स के ग्रेड के लिए होता है। जैसे कि एक एग्जांपल बता रहे हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल है। जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, शिमला मनाली ये सब जगह है, यहाँ पे क्या होता है कि देखो 4 महीना जो है वो पीक सीजन होता है टूरिस्ट का, गर्मियों में है होता है। और विंटर्स के टाइम पे भी 1-2 महीना तुम मान लो कि बर्फ देखने के लिए लोग पीक सीजन के लिए वहां जाते हैं। उस समय जितना उसका स्टाफ है, उस स्टाफ से उसका काम नहीं चलता है, क्योंकि इतना रश पड़ जाता है। दे नीड मोर people for room service, they need more people for waiters, they need more people for driving a car, they need more people for serving those people, they need more people for serving in the restaurant, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तो रूम सर्विस की जरूरत होगी, रेस्टोरेंट में ज्यादा वेटर्स की जरूरत होगी। and to fasten up the process they hire more people। तो ये लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं। इतने लोगों को रिक्रूट किया, ठीक है, फैक्ट्री गेट पे ही रिक्रूटमेंट का बोर्ड, रिक्रूटमेंट चिपकाया कि हमें इतने लोगों की जरूरत है, उनको इंटरव्यू किया और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ले लिया। इनको बता दिया जाता है कि काम हो जाने पे या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से रखा जाता है कि ये सीजन के बाद वी विल फायर यू। कई बार फायर नहीं भी किया जाता है। अगर मान लो तुरंत मजदूरों की जरूरत है प्रोडक्शन एरिया में तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर लिया जाता है एंड देन दे आर केप्ट। तो ये कैसा रिक्रूटमेंट हुआ, एक्सटर्नल की इंटरनल? एक्सटर्नल।
एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हुआ। एक्सटर्नल मैम। गुड। अब इंटरनल रिक्रूटमेंट का एग्जांपल्स बताओ जरा। ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। वेरी गुड। ट्रांसफर होता है, प्रमोशन होता है। जैसे मुझे लगा कि ऑर्गेनाइजेशन को ये लगता है कि उसके एक बंदे को पटना में मैन पावर की इतनी जरूरत नहीं है, यहाँ से उठा के दिल्ली भेज दिया जाए। ये रिक्रूटमेंट कैसा हुआ? इंटरनल, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हो रहा है। यस मैम। ट्रांसफर, प्रमोशन का तो भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हम लोग, ठीक है। यस मैम। अब देखो, ये सुने हो कि नहीं तुम लोग कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम है और उसी के फॉर्मल एम्प्लॉयज को, जो फॉर्मर एम्प्लॉयज हैं, पहले जो काम कर चुके हैं, उनको बुला करके काम दिया जाता है। इसलिए क्योंकि वो पहले से इक्विप्ड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से, काम से, इसलिए। दूसरी बात, आप देखे होंगे कि बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक वगैरह में भी होता है, जब रिटायरमेंट हो जाता है तो उनको एक जॉब ऑफर होती है रिटायरमेंट के बाद कि आपको अच्छे सैलरी दिया जाएगा, ऑफ कोर्स लेस देन व्हाट ही वाज अर्निंग, लेकिन कुछ काम जैसे क्लेरिकल काम है या एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर वर्क है, ये सब काम कराने के लिए उनको ऑफर किया जाता है, जो एक्स एम्प्लॉइज हो गए, कि आप आइए और हमारे यहाँ ज्वाइन कीजिए। ये सुने हो? यस मैम। मैम मैं सुनी हूँ। यस मैम। ओके, जिनके घर में लोग होंगे ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से, उन लोगों को पता होगा, ठीक है, उनको पता होगा कि हाँ, तो दे आर कॉल्ड बैक काम करने के लिए, तो दैट इज नोन एज एक्स एम्प्लॉइज। तो एक्स एम्प्लॉइज किसका टाइप हो, इंटरनल का कि एक्सटर्नल का? इंटरनल। इंटरनल का। इटर्नल मैम। इसको फटाफट लिखो, आप सब टाइप समझ गए तो लिखो, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट में एक्सटर्नल का एग्जांपल लिखो। बोलो मैम, रिकमेंडेशन जो होता है वो इंटरनल में आएगा या एक्सटर्नल में? रिकमेंडेशन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है, जॉब रेफरल कहते हैं इसको। ओके। राइट डाउन। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का एग्जांपल्स लिखिए, फटाफट लिखिए। कैंपस रिक्रूटमेंट, सॉरी, कैंपस रिक्रूटमेंट। सेकंड, वॉक इन इंटरव्यू, जल्दी जल्दी लिखो। सेकंड, वॉक इन इंटरव्यू। थर्ड, जॉब पोर्टल्स। फोर्थ, कंसल्टेंट्स। मैम थर्ड में जॉब क्या बोल रहे हैं? जॉब पोर्टल्स जैसे naukri.com, shine.com, ये सब जॉब पोर्टल्स। ई रिक्रूटमेंट, ई रिक्रूटमेंट एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ई रिक्रूटमेंट एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इंटरनल का एग्जांपल लिखिए। ट्रांसफर, प्रमोशन, फॉर्मर एम्प्लॉइज, ये सब किसका एग्जांपल हो जाएगा? बताओ। इंटरनल का। इंटरनल का। इंटरनल। ठीक है, ओके, 1 मिनट। नाउ एम्प्लॉय रेफरल के बारे में ये 2 पॉइंट है, 2 चीजें हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा इसमें डिटेल्स में डील करेंगे। जैसे आंचल हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन कि एम्प्लॉय रेफरल क्या है, और ई रिक्रूटमेंट हम तुम लोग को नहीं समझाए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कि आंचल ने पूछा कि जो एम्प्लॉय रेफरल है वो इंटरनल रिक्रूटमेंट है या वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है, इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, और ये भी ई रिक्रूटमेंट पे भी, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट जो अभी सबसे ज्यादा कॉमन हो गया है, ठीक है।